Hello guys and welcome to Manual Education. In this session we will be seeing the detailed paper solution of test 2018, the English section. So guys, if you are preparing for TestNet exam and targeting the test campuses, then you can contact us. We provide live coaching as well as classroom coaching, books as well as ebooks. We teach you shortcut tricks, conduct your doubt sessions, provide you with recorded videos, also give you topic tests, mock tests, and with an ocean of over 10,000 plus questions, we prepare you comprehensively for the exam. Not just this, we keep you connected with your mentors on the WhatsApp group, wherein you can ask your doubts to them as and when they arise, and they'll get solved quickly. So guys, what are you waiting for? Book your seat with us right now by calling us on 8828581455. We also have our classroom coaching in Mumbai. Our centers are at Dadar, Borivali and Vasai. You can call on these numbers and visit our centers. And for more information, you can log into our website. Now, I know that paper solutions may be available in the market, but guys, in this session I am going to teach you the topper's approach, how to approach the question, how a topper approaches the questions, and how to solve them quickly, because you know one thing that we are short of in our exam is time. Yes, so how to solve these questions within 20 to 30 seconds and what your approach should be, that is what we are going to see in this session, along with the ready paper solution of 2018. So without any further delay, let us get started. The first question is complete the sentence. So this is a fill in the blanks. The teacher added the stipulation that all projects had to be dash. No student could carry out research on area that had already been explored. मतलब कुछ ऑलरेडी हुआ है उसको कॉपी नहीं कर सकते, कुछ नया चाहिए उनको, राइट? सो कुछ नया चाहिए मतलब क्या चाहिए उनको? ओरिजिनल चाहिए. सो दे वांट एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट. सो द नंबर वन टिप इज़ दैट गाइज, अगर आपको चीज़ें समझनी है, ऑलवेज ट्रांसलेट देम इन योर ओन मदर टंग. समझिए कि वो कह क्या रहे हैं, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर योर, Had you been at the disaster site, you would have understood the magnitude of the destruction of the given options, which does not mean the magnitude. अभी यहाँ पे ये देखिए, had you been at the disaster site, मतलब तू अगर वहाँ पे होता ना, you would have understood the magnitude of destruction. तुझे समझता कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कितना बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे. सो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता, इनॉर्मिटी वो बोल रहे हैं, क्योंकि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ मतलब लार्ज स्केल भी हो रहा है, क्वांटम भी हो रहा है. सिग्निफिकेंस नहीं बोल रहे. सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंस. अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बात कर रही होती यहाँ पे तो इम्पोर्टेंस करेक्ट था, लेकिन मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ की बात कर रही हूँ. सो नेगेटिव चीज़ों के साथ यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं आएगा. Which option does not mean handed in the sentence? She handed the documents to the revenue office. अभी handed मतलब दे दिया, ओके. सो डिलीवर किया, दे दिया मतलब gave, and passed on मतलब भी उनको दे दिया. लेकिन handled wrong है. She handled the documents to revenue officer नहीं आएगा. हैंडल करना मतलब आप कोई चीज़ हैंडल कर लेते हो ना, उसे हैंडल करना बोलते हैं, ना कि किसी चीज़ को पास ऑन करना. The group of nurses are complaining about the lack of safety precautions in the hospital. यहाँ पे अगर एरर होगा तो आपको बोलना है एरर है, नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज़ नो चेंज. यहाँ पे देखिए नर्सेस दिया है, लेकिन नर्सेस के पहले क्या दिया है? द ग्रुप. सो गाइस मुझे बताइए कि ग्रुप जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है? टेल मी. यहाँ पे ऑब्वियस है हमारा ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा. अभी वो ग्रुप नर्सेस का होने दो, बर्ड्स का होने दो, या किसी का भी होने दो, ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन करके सिंगुलर लेंगे. तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हमेशा वर्ब कौन सा आना चाहिए? कलेक्टिव नाउन के साथ याद रखना गाइस, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. ओके. there is a slight only 0.0001% चांस होता है जब कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है. तो वो 0.0001% कौन सा चांस है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में सिखाया है. सो जो भी मेरे लेक्चर्स के बच्चे देख रहे हैं, कम ऑन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कब कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल वर्ब लेता है, बताओ मुझे.
कौन से टाइप का नाउन जब कलेक्टिव नाउन बन के आता है तब वो प्लूरल वर्ब लेता है. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, द ग्रुप ऑफ नर्सेस इज आएगा यहाँ पे, इज कंप्लेनिंग आना चाहिए, आर कंप्लेनिंग नहीं आना चाहिए. सो यहाँ पे इज कंप्लेनिंग अबाउट आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, whenever I eat an ice cream I get a cold. Okay, which of the following sentence, read the given sentence and answer the following question. Whenever I eat an ice cream I get a cold. Which of the following statement is definitely true? ये ना थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग की तरह होता है, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि टिस एग्ज़ाम में ना पर्टिकुलरली इंग्लिश में थोड़ा लॉजिक टाइप भी टेस्टिंग कर लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, बट इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन इंग्लिश, बट थोड़ा सा लॉजिकल मोड आ जाता है उसको. ओके, नाउ next, complete the sentence with the correct option. We were so delayed that the football match dash by the time we dash. अभी हमको इतना लेट हुआ था कि फुटबॉल मैच ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी जब तक हम वहाँ पे पहुँचे. सो वी वर सो लेट दैट द फुटबॉल मैच हैड ऑलरेडी फिनिश्ड by the time we arrived. Okay, this is going to be the answer. This is another thing that I had thought कि ये जो ह वाले वर्ड्स है ना, परफेक्ट टेंस, ये कब आता है पता है गाइस? जब दो एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं. यहाँ पे देखो, फुटबॉल मैच का ख़त्म होना इज़ एक्टिविटी नंबर 1 एंड हमारा वहाँ पे पहुँचना इज़ एक्टिविटी नंबर 2. अगर मैं एक के बाद एक दो एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ ना, तो पहली वाली एक्टिविटी जो है ना वो हमेशा परफेक्ट टेंस लेंगी, और दूसरी वाली एक्टिविटी जो है ना वो शायद नॉर्मल जस्ट पास्ट टेंस लेगी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? नाउ choose the option that would make the sentence grammatically most correct. Whose life is it anyway? यहाँ पे याद रखना whose कैसे आता है, so it is always WHOSE, this. Okay, whose life is it anyway? Whose नहीं आएगा. My wife and dash will attend the function. My wife and I will attend the function. I / मी वाले जो ऑप्शंस आते हैं ना, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो तुम लोग थोड़े इसके क्वेश्चन टाइप्स देख लेना एंड वैसे सॉल्व कर लेना. द हाउस एज वेल एज द गार्डन वर टू बी ट्रीटेड फॉर अ टर्माइट इन्फेस्टेशन. चूज द ऑप्शन दैट वुड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. द हाउस एज वेल एज द गार्डन डैश टू बी ट्रीटेड. यहाँ पे जो आएगा ना गाइस, वर टू बी ट्रीटेड नहीं आएगा, इज टू बी ट्रीटेड. एज वेल एज आया ना फ्रेज, तो अभी सेकेंड वाला जो है ना, वी विल टेक द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, जो सेकेंड वाला यहाँ पे आ रहा है ना, गार्डन, तो वो उसका सिंगुलर आएगा. द हाउस एज वेल एज, जैसे अगर मैं बोलती नीदर द हाउस नॉट द गार्डन इज टू बी ट्रीटेड, आर नहीं आएगा, वैसे ही एज वेल एज के साथ भी इज आएगा. इज टू बी ट्रीटेड फॉर अ टर्माइट इन्फेस्टेशन, सो यहाँ पे इज आना चाहिए, तो इज वाला ऑप्शन इज बी. Nearly dashed by the disease and the destruction of the habitat, koalas are now found only in isolated part of eucalyptus forest.
अभी क्या हुआ रहेगा, डैश बाय द डिजीज़, मतलब उनको डिजीज़ हो गया रहेगा ना, तभी वो दिखते नहीं है, ठीक है। सो डिस्ट्रॉयड होते तो दिखते ही नहीं ना गाइज, डिस्पर्स होना मतलब इधर उधर वो भी नहीं होगा। डेसिमेटेड यहाँ पे आंसर आएगा। डेसिमेटेड का मीनिंग है एड्रेसिंग अ डिजीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा वोकेबलरी पे अपने वर्क कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज लेना, ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज़ का रिवेंज लेना। सो यहाँ पे आंसर आएगा रिवेंज। मॉडर्न सिनेमेटोग्राफी, दिस इज एन एरर डिटेक्शन। ऐसे स्लैश दिख जाए तो समझ लेना एरर डिटेक्शन आया है, कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। मॉडर्न सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स आर फार सुपीरियर टू दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। मॉडर्न सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स आर फार सुपीरियर, यहाँ तक तो करेक्ट है, और सुपीरियर के साथ टू ही आएगा, दैन नहीं आएगा, वो भी करेक्ट है। आर फार सुपीरियर टू दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट, टू दैट आएगा या दोज आएगा, हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। टू दोज एम्प्लॉयड इन द पास्ट, तो यहाँ पे सी आएगा आंसर। नाउ he wondered whether he could make it through the storm, as there was no safe haven in sight, and it was pouring cats and dogs with the road full of gushing water. With the road full of gushing water नहीं आएगा, with the roads full with gushing water, क्योंकि उनमें gushing water है, so the roads are full with gushing water. This will be your answer. प्रपोजिशंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप हमारे बाकी के एनालिसिस भी देख लीजिए, वी विल लिंक द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। प्रपोजिशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा प्रपोजिशंस को ब्रश अप कर लेना। इट्स अ वंडर दैट डैश स्टिल सच अ पॉपुलर बैंड इवन आफ्टर 20 years ऑफ बीइंग ऑन द म्यूजिक चार्ट्स। देयर स्टिल नहीं, देयर नहीं, देयर नहीं, दे आर, ये बहुत सिंपल था ना। नेक्स्ट, none of the students prepared for the examination. As far as answering the examination paper was concerned, they were all, क्या हो रहा है, making their mark, making their mark तो जाते ना एग्जामिनेशन को, sailing in the same boat, this is perfect, क्योंकि प्रिपरेशन किसी की भी नहीं हुई थी, तो किसी ने, none of the students were prepared ना, so as far as answering they were sailing in the same boat, सबकी सेम वाट लगी थी। The itinerary set by the travel agent included so many stops in a dash amount of time that they received only the most dash impressions of the places they visited. So itinerary में इतने stops थे एक कम टाइम में ना, इसलिए उनको ज़्यादा, they included so many stops in a dash amount of time that they received only, तो हमेशा हम obviously यहाँ पे पॉजिटिव बट बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बोल रहे कि इतने सारे स्टॉप थे, सो मैनी स्टॉप्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम कम है, तो टाइम अपने पास सफिशिएंट जनरस नहीं है, लिमिटेड है, तो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम भी आ सकता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं आता, इन अ लिमिटेड टाइम आता ना, ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम करेक्ट है। दैट दे रिसीव्ड ओनली द मोस्ट फ्लीटिंग इम्प्रेशंस ऑफ द प्लेसेस। फ्लीटिंग मतलब ऊपर ऊपर से उनको सिर्फ समझा कि क्या चल रहा है, नॉट अच्छे से। In this way, nuclear fission or the splitting of the atoms have been achieved. और आया है गाइस यहाँ पे, और जब मैं और बोलती हूँ ना, अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो पेन है, ठीक है, दिस इज पेन नंबर 1, दिस इज पेन नंबर 2, अगर मैंने यहाँ पे एंड बोला ना तो मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो प्लूरल आएगा, पर अगर मैंने और बोला ना तो मैं दोनों में से एक की बात कर रही हूँ, तो सिंगुलर आएगा। सो यहाँ पे एक तो इन दिस वे एक तो न्यूक्लियर फिजन मिलता है या फिर स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स, दोनों में से एक, दैट इज वाई सिंगुलर हैज बीन अचीव्ड आएगा। मिस कपूर रिकमेंडेड परसिवरेंस एंड डैश इन डीलिंग विद द एक्टिविटीज़। देखो अभी वो परसिवरेंस के बाद कुछ वैसी की ही बात करेगी, राइट। परसिवरेंस मतलब क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ पे डटे रहना, रुके रहना, ओके, नॉट टू रश एंड नॉट टू, सो उसे को हम पेशेंस बोलते हैं, सो यहाँ पे आएगा पेशेंस। द लैंड रिफॉर्म्स वर डाइल्यूटेड इफ नॉट सैबोटाज्ड इन डैश विथ पॉलिटिशियंस एंड हाईली प्लेस्ड लीगल ऑफिशियल्स। तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो डाइल्यूट हुए थे इन एग्रीमेंट नहीं, इन कोल्यूजन। यहाँ पे ना गाइस डाइल्यूशन एंड सैबोटाज जो है ना उसका मतलब नेगेटिव है,
ठीक है। सैबोटैज करना मतलब इन अ वे डिस्ट्रॉय, डाइल्यूट करना मतलब उसमें मेल कर देना, तो नेगेटिव टोन है। तो यहाँ पे कोल्यूजन ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव टोन वाला वर्ड है। कोल्यूजन मतलब मिलीजुली भगत टाइप्स। नीदर द बैंक मैनेजर नॉर द अदर स्टाफ मेंबर्स, देखो अभी यहाँ पे वापस रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब नीदर नॉर आएगा तो बाद में जो आ रहा है ना उसका टेंस हम लेंगे। ये हमने पहले के भी इसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सिमिटी का रूल। अगर ये सेम सेंटेंस ऐसा होता कि नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द बैंक मैनेजर, तो वॉज एबल परफेक्ट था। लेकिन क्यों परफेक्ट था, क्योंकि अगर स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे जाके बैंक मैनेजर यहाँ पे आता तो यहाँ पे क्या आता, बैंक मैनेजर जो है सिंगुलर एक, दैट इज वाई वॉज मस्ट परफेक्ट। लेकिन स्टाफ मेंबर्स इज प्लूरल, तो वॉज कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ब। सो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेज कि वर्ब के पास जो है ना उन्हीं का जो सिंगुलर प्लूरल है वो लगाओ। सो नीदर द बैंक मैनेजर नॉर द अदर स्टाफ मेंबर्स were able to calm the distressed client. Alright, the next is a comprehension, so let us quickly read it. To those who do listen, the desert speaks of the things with an emphasis quite different from that of the shore, the mountain, the valley, or the plains. Whereas these invite action and suggest limitless opportunity and exhaust less resources, the implications and the mood of the desert are something different. For one thing, the desert is conservative and not radical. It is more likely to provide awe than to invite conquest. The heroism which it encourages is the heroism of endurance, not that of the conquest. It brings man up against this limitation, turns him upon himself, and suggests values which more indulgent regions suppress. Sometimes it includes contemplation in men who have never contemplated before. And of all the answers of the question, what is a desert good for? Contemplation is perhaps the best. Such a beautiful passage, guys, such a beautiful. To those who have actually visited desert, they can relate this. I have, so I can rather relate with this one. So now let us look at the question. In order to receive the desert's message, the beholder needs to be, देखो गुड लिसनर तो नहीं है, कुछ सुनने की बात नहीं हो रही है, वो बोल रहे हैं कि कंटेम्पलेट करो। कंटेम्पलेट करना मतलब खुद में वापस झाँक कर देखना, कि हमें खुद को एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। तो उसमें करेज की बात नहीं है, उन्होंने बोला इट्स नॉट अबाउट कॉन्क्वेस्ट, कंजर्वेटिव है लेकिन डेजर्ट है। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव इन नेचर, मतलब जो इंसान रिफ्लेक्ट कर सकता है वही डेजर्ट में जाके कुछ फील कर सकता है। द फ्रेज इट ब्रिंग्स मैन अप अगेंस्ट हिज लिमिटेशंस इंडिकेट दैट, इससे हमें क्या समझता है कि मैन को उसके लिमिटेशन समझते हैं। अ मैन इज मेड अवेयर ऑफ हिज लिमिटेशंस। देखो नेगेटिव नहीं है पैसेज, तो होपलेस वगैरह नहीं आएगा, ओवरकम करने के लिए नहीं बोल रहा है, बस लिमिटेशंस की एक अवेयरनेस पैदा करके देता है, नॉट फाइटिंग, नॉट एनीथिंग। ओके, द डेजर्ट इज यूनिक अमंग लैंडस्केप्स इन दैट इट इज रिलेटिवली कांस्टेंट। कांस्टेंट ही होता है ना, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ जमीन 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 जमीन, सैंड 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 सैंड, दैट्स इट, यू कैन सी नथिंग एल्स। सो इट इज प्रीटी कांस्टेंट। वैसे ऐसा बीच पे नहीं होता ना, बीच में देखो थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी ज़मीन, बीच में कुछ ऐसा थोड़ा सा आइलैंड आता है फिर, बट ऐसा डेजर्ट का नहीं होता। प्लस जो बीचेस होते हैं दे आर मूविंग, कंटिन्यूस मूवमेंट है, कंटिन्यूस समथिंग इज हैपनिंग, नॉट द सेम हैपन्स ऑन डेजर्ट्स। द राइटर कॉल्स द डेजर्ट conservative rather than radical because it provides an environment that, कंजर्वेटिव है, रेडिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट देता है जो इंस्पायर्स वन टू टेस्ट वंस एंड्योरेंस। परफेक्ट। ग्लूमी इज नेगेटिव, एक्सप्लोर करता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी को कॉन्कर भी नहीं बोला है, कॉन्क्वेस्ट की बात ही नहीं हो रही है। इफ वन रिस्पॉन्स विद इंसाइट टू द मूड ऑफ द डेजर्ट, इट इन्वोक्स डीप थॉटफुलनेस। ओके, वन मोर पैसेज।
Before the grass has thickened on the roadside verges and leaves had started growing on the trees, is a perfect time to look around and see just how dirty Britain has become. The pavements are stained with chewing gum that has been spat out, and gutters are full of discarded fast food cartons. Not a very lovely picture. Years ago, I remember traveling abroad and being saddened by the plastic bags, discarded bottles, and soiled nappies at the edge of every road. Nowadays, Britain seems to look at least as bad. What has gone wrong? The problem is that the rubbish created by our increasingly mobile lives lasts a lot longer than before. If it is not cleared up and properly thrown away, it stays in the undergrowth for years, a semi permanent reminder of what a tatty little country we have now. Firstly, it is estimated that 10 billion plastic bags have been given to shopkeepers. These will take anything from 100 to 1000 years to rot. However, it is not as if there is no solution to this. A few years ago, the Irish government introduced a tax on non recyclable carrier bags and in 3 months reduced their use by 90%. When he was a minister, Michael Mercer attempted to introduce a similar arrangement in Britain. The plastic industry protested, of course. However, they need not have bothered. The idea was killed before it could draw breath, leaving supermarkets free to give away plastic bags. What is clearly necessary right now is some sort of combined initiative, both individual and collective, before it is too late. The alternative is to continue sliding downhill until we have a country that looks like a vast municipal rubbish tip. We may well be at the tipping point. Yet we know that people respond to their environment. If things around them are clean and tidy, people behave cleanly and tidily. If they are surrounded by squalor, they behave squalidly. Now, much of Britain looks pretty squalid. What will it look like in 5 years? Mm-hmm. बहुत ही गुस्से में author. It is general knowledge that people behave according to what they see around them. People are like a vast municipal rubbish. नहीं नहीं, वो होगा ऐसे बोल रहा है. This is future. People are clean and tidy. People are squalid. ये हम नहीं बता सकते. ये future में होगा. पर जनरल नॉलेज ये है कि आजू बाजू में जैसा दिखता है वैसे हम होते हैं. माइकल मर्चर issued orders to follow the Irish example नहीं, tried to follow the example. हाँ, क्योंकि वो बाद में scrap out हुआ ना. Followed नहीं, question the plastic industry नहीं, he just tried to follow but it didn't work. According to the writer, years ago things used to be the same abroad as compared to Britain नहीं, better than Britain, worse abroad as compared to Britain, worse. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है Years ago, I remember traveling abroad and seeing saddened by the plastic bags, discarded bottles, and soiled nappy at the edge of every road. Nowadays, Britain ऐसा हो रहा है. मतलब ब्रिटेन पहले ऐसा नहीं था, अब्रॉड ऐसा था. So according to the writer, years ago things used to be worse abroad as compared to Britain. For the writer, the problem is that rubbish lasts longer than it used to be. Britain is a tatty country. Rubbish is not cleared up. Our society is increasingly mobile. Rubbish lasts longer than it used to be. Okay? यहाँ पे भी ये भी दिया है. देखिए, बहुत ही सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जो सीधे सीधे पेज में दिए रहते हैं. ये देखिए, the problem is that the rubbish created by our increasingly mobile life lasts longer than before. ठीक है, तो ये बात सीधी सीधी दी है. Same, rubbish lasts longer than it used to be. Clear? Next, the writer thinks we need to work together to solve the problem. We are at the tipping point. It is too late to do anything. There is no alternative. यहाँ पे we need to work together to solve the problem will be the right answer, because again देखिए,
What is clearly necessary right now is some sort of combined initiative, both individual and collective, before it is too late. So ऑथर को क्या लगता है कि हमें सबको मिल के कुछ करना चाहिए. We need to work together to solve the problem. So guys, that was all about this session. हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखे, हमने कैसे आंसर्स फाइंड करने हैं वो देखा. बस आरसी ज़रा फास्ट पढ़ लेना. आई रेड इट स्लो बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई वॉज रीडिंग आउट फॉर यू ऑल, बट यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग फास्टर. स्पीड से पढ़ा कीजिए. ओके सो हमने ये सब इसमें टिप्स देखे, आरसी, एरर डिटेक्शन, सबके क्वेश्चंस कैसे आते हैं. I hope this video was helpful to you guys, and if it was, then make sure you share it with your friends. And if you are preparing for TestNet exam, then we provide live classes, classroom coaching, books, mock tests, topic tests, mentorship, and a lot more to prepare you for your exam. So you can contact us and book your seat with us by calling us on 8828581455. We also have our centers in Mumbai at Borivali, Vasai and Dadar, so you can contact on these numbers and visit our centers. You can also log into our website for more information about us. And guys, do follow us on our social media handles, like and share our content on Facebook, follow us on Instagram and join our Telegram channel. All the links are in the description below. And of course subscribe to our YouTube channel, because we keep on uploading much of such important content for you which is going to be helpful for you. So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था. एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो हमने इससे पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. All the links in the description box below. Do check it out, and yes, do share this video with your friends, and we will meet you in the next video.